Good morning, students. In last video we have seen fractions, how to write unshaded fraction, shaded fraction. Now we are going to see numerator and denominator of a fraction. Numerator और denominator क्या होता है fraction में? See, a fraction is written with two numerals arranged one over the other and separated by a line. Yesterday we have seen two numbers are written one and down, and between that one line is there. The numeral above the line is called the numerator. लाइन के ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है. एंड द न्यूमरल बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है ऑफ द फ्रैक्शन. एग्जाम्पल सी हियर. इन 2/3 वी हैव न्यूमरेटर 2. न्यूमरेटर इज अबव द लाइन. न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज बिलो द लाइन, दैट इज 3. यस, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू राइट द हेडिंग, डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन यहाँ तक लिखनी है आपको, एंड दिस वन एग्जाम्पल. दो एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है. 4/7, 4 इज न्यूमरेटर, 7 इज डिनोमिनेटर. 1 is numerator, 8 is denominator, like that. Yes, so on this numerator and denominator one exercise is there, that is exercise 40. You have to just write the numerator and denominator properly here. See, question 1, write the numerator and denominator of each of the following fractions. Very easy question. Fractions are given to you. 1/7. So 1 is here what? Numerator. So numerator column 1. Yes, 7 is denominator. So denominator is 7 here. Write like this. Understand? Very easy. Here 11/24. 11/24. Numerator is here 11. Yes, 11. 24 is denominator. Same way, 7/23. 7 is numerator, 23 is denominator. Last question I am solving here now, J. 22/41. So here numerator is what? 22 and 41 is denominator. Okay, write same way the other examples whatever we are not solved. Now see question 2, it is also based on numerator and denominator. Write the fraction in which numerator is 7, denominator is 12. You have to just write the fraction for this. So numerator हमेशा आपको लाइन के ऊपर लिखना है. तो क्या आंसर आएगा? न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 12. Yes, same way B question C. Numerator 5, denominator 8. So numerator 5, line, denominator 8. Okay, now C and E you have to solve. D question C now. D also you have to solve. I am solving the F question. Denominator 10, numerator 9. Now denominator is given first. आपको पहले denominator दिया हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? Denominator 10 कहाँ पे आएगा आपका? नीचे. Denominator 10, numerator 9. Yes, CG question. Denominator 15, again denominator is given here first. So denominator 15, numerator 7. Numerator ऊपर, denominator नीचे. Solve out the question like this. Now see the fill in the blanks. Very easy. In 10/17, 10/17, the dash is 17. 17 is what here in the given fraction? 17 is below the line, so it is denominator. So spelling of denominator you have to write. Denominator spelling अच्छे से आपको लर्न करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का. डिनोमिनेटर. ओके, नाउ इन 8/15 द dash is 8. 8 क्या है? लाइन के ऊपर. इट इज अबव द लाइन, सो इट इज न्यूमरेटर. न्यूमरेटर. ओके, नाउ in 14/19 the numerator is which number here? Above the line, that is numerator, that is 14. In 17/23 the denominator is 23. Okay, now this E question you have to solve yourself. आपको खुद solve करना है ये E question. टेक्स्ट बुक में solve करना है आपको. Now next topic we will see. Next topic is fractional part of a collection or a group. Yes,
collection or a group, how to write the fractional part. Now see, as we have studied earlier, 1 by 2 means half part out of the 2 equal parts. Yes, 1/3 means 1 part out of the 3 equal parts. 1/4 means 1 part out of 4 equal parts. 2/5 means 2 parts out of 5 equal parts. Yes, ऐसे आगे हम और parts बना सकते हैं. So the above fact can be used to shade or find the fractional part of a collection or a group of objects. Collection or group of objects means same objects in the same group or same collection. Yes, so here one example you will see. Let us find and shade half of collection of 6 balls. Yes, 6 balls is given to you. Yes, now see, we divide the collection into 2 equal parts by a line as shown. This line is shown here. So we have divided this collection into 2 equal parts. कलेक्शन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट में 3 बॉल है, दूसरे पार्ट में 3 बॉल है. मीन्स बोथ द पार्ट्स आर इक्वल. यस, सो शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द कलेक्शन. 3 बॉल को कलेक्ट किया तो हाफ बॉल्स को कलेक्ट किया है. यस, सो हाफ ऑफ 6 बॉल्स इज 3. 6 के हाफ कितने हो गए आपके? 3 बॉल्स. ओके, सो हाउ टू राइट दिस हाफ ऑफ 6? पे अटेंशन हियर. सी, हाफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 3. ऑफ मतलब यहाँ पे होता है आपका मल्टीप्लिकेशन और ये 6 आपका ऊपर जाता है तो वो डिवाइड होता है. आपको एक स्टेप बढ़ा के बता रही हूँ मैं आपको. हाफ इंटू 6, सो ये 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो बन जाता है 6/2. यस, तो 6/2 को हम लिख सकते हैं ऐसे 6 डिवाइड बाई 2. यस, ये 6 को ये 2 डिवाइड करता है तो 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3. सो वी गेट द हाफ ऑफ 6 इज 3. यस, सो सी हियर, टू फाइंड हाफ ऑफ अ कलेक्शन वी डिवाइड बाय 2. किसी भी कलेक्शन का हाफ अगर फाइंड करना है आपको तो आपको उसे 2 से डिवाइड करना है. ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? यू आर जस्ट गोइंग टू गिव द हेडिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप. यस, एंड जस्ट राइट द एग्जाम्पल फ्रॉम हियर. सी, लेट अस फाइंड से लेके आपको ये पूरे ब्लू लाइन तक एग्जाम्पल लिखना है. ओके, after that no need to write the explanation, you have to just write this. To find 1/3 of a collection we divide by 3. ये आपको स्टेटमेंट लिखना है. 1/3 फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना होता है 3 से कलेक्शन ऑफ ग्रुप को. यस, नेक्स्ट आफ्टर दिस यू हैव टू राइट दिस. टू फाइंड 1/4 ऑफ अ कलेक्शन वी डिवाइड बाय 4 एंड टू फाइंड 1/5 ऑफ अ कलेक्शन वी डिवाइड बाय 5 एंड सो ऑन. 1/4 चाहिए 4 से डिवाइड करना है, 1/5 चाहिए 5 से डिवाइड करना है, 1/6 चाहिए तो आप 6 से डिवाइड करेंगे. ऐसे आपको डिनोमिनेटर के नंबर से कलेक्शन को डिवाइड करना है. आ रहा है समझ में? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज 41. एक्सरसाइज 41, फर्स्ट क्वेश्चन, कलर टू शो द फ्रैक्शन. सो हियर हाउ मेनी कैप्स यू कैन सी? 3. यस, एंड व्हाट इज द फ्रैक्शन गिवन हियर? 2/3. सो आपको 3 में से 2 को कलर करना है. कलर टू शो द फ्रैक्शन. सो यू कैन यूज़ कलर हियर. आई एम जस्ट शोइंग यू विद द पेंसिल. ये आपको ये एक कैप कलर करनी है और एक कैप कलर करनी है. ओके, ठीक से कलर करना है आपको आपके पसंद के कलर से. नाउ सेकेंड इज गिवन 3/4. 4 बेल में से आपको 3 बेल्स को कलर करना है. कोई भी 3 आप कलर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. 1/3. नाउ हियर सी, 1/3 इज गिवन तो आप सिर्फ 1 कैप को नहीं कलर करने वाले हो. 1 2 3 4 5 6. 1/3 ऑफ 6 यू हैव टू फाइंड आउट. तो 1/3 फाइंड करना है आपको तो 6 को 3 से डिवाइड करना है. यस, यू नो दैट 3 2s are 6. तो आपको 2 कैप्स को कलर करना है. ओके, 2 कैप्स आप ठीक से कलर करेंगे. नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाना इज गिवन. उसमें से आपको 1/4 को कलर करना है तो आपको 8 को 4 से डिवाइड करना है. यस, सो 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2. 4 2s are 8. तो 2 बनानाज आपको कलर करने हैं. यस, अगर आपको ऐसे हार्ड लग रहा है तो आप क्या करेंगे? पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे आप इसको कलेक्शन को. यस, आ रहा है समझ में? और फिर आप 8 हो गए, यहाँ पे 4 दें तो 4 में से 1 करना है तो 4 में से आप 1 करेंगे और यहाँ पे 4 में से 1 करेंगे तो आपका 2 बनाना ही कलर होने वाले हैं. यस, वैसे भी आप कर सकते हैं. नाउ
candles are given here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाफ ऑफ 10, 10 को आपको 2 से डिवाइड करना है. 10 2 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 2 5 are 10. So you have to color 5 candles. Understand? Division. 2 5 are 10. Like this you have to color the given objects. See the question 2. Shade one half of the collection and write the result as shown. Now here 8 fish are shown. 1 2 3 4 5 6 7 8. Out of that 4 are colored. Yes. So कितने कलर हो गए ग्रुप में आपके? पूरे हाफ कलर हो गए. तो हाफ ऑफ 8 इज इक्वल टू 4. अंडरस्टैंड? हाफ फ्रैक्शन, हाफ पार्ट्स कलर है तो हाफ लिखा आपने, और टोटल का हाफ बनाना है आपको, तो हाफ ऑफ 8 इज कलर कितने हो गए? 4. ये आपको रिटर्न रिजल्ट है आपका. नाउ हियर हाउ मेनी स्टार फिश आर गिवन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. We divide it into 2 equal group by drawing the dotted line. Now in one group how many starfish are there? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So both are equal. Yes. तो आप एक को कलर करो, ऊपर को, इनको आप कलर करो ठीक से, आपको जो कलर अच्छा लगता है उससे. तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट? ये भी हाफ पार्ट ही है. हाफ ऑफ विच नंबर यू आर गोइंग टू राइट नाउ? टोटल ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल फिश कितने उसका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है. हाफ ऑफ 10 इज इक्वल टू कलर कितने किया आपने? 1 2 3 4 5. ओके, ठीक से कलर करना है आपको इसको. सेम वे यू हैव टू राइट हियर दिस कलेक्शन. सी जोकर कैप्स आर गिवन हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Yes, 14 you are going to divide into 2 equal parts. Yes, so one part is having how many caps? 14 का हाफ बनाना है आपको. ऐसे बनाया मैंने. ओके, तो कितने कैप्स आए? 1 2 3 4 5 6 7. यस, आपको हाफ पार्ट कलर करना है तो आपको ये पूरे कैप्स कलर करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7. यू हैव टू कलर. तो आपको लिखना है यहाँ पे हाफ ऑफ, कितने का हाफ बनाया आपने? टोटल कैप्स कितने हैं? 14. हाफ ऑफ 14 कलर कितने किए आपने? 7. सो हाफ ऑफ 14 इज 7. 2 7 जा 14. अंडरस्टैंड? सेम वे आपको ये ट्राई करना है लिखने का. आपको लीव्स काउंट करने हैं, लीव्स का आपको हाफ में डिवाइड करना है, फिर आपको उसका यहाँ पे रिजल्ट लिखना है. ओके, नाउ सी क्वेश्चन 3. शेड 1/3 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट एज शोन. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू. पहले क्वेश्चन में हमने 1/2 मतलब 1/2 फाइंड किया था, अभी 1/3. सो आपको टोटल कलेक्शन को कौन से नंबर से डिवाइड करना है? 3 से. यस, और 3 ग्रुप में आपको उसको डिवाइड करना है. सो सी हियर द कलेक्शन. इन वन कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल इज गिवन है 12 and that divided into 3 equal groups. So one group is having 4. So 1/3 you have to color means one group आपको color करना है. So 1/3 of 12 is equal to 4. Same way you have to write for the other objects. Now see here, brinjals are given. Count it first. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yes, so 15 you have to divide with the 3. What will get answer? 3 5 are 15. So आपके एक ग्रुप में कितने आएंगे? ब्रिंजल 5. ओके, तो आपको एक ग्रुप को कलर करना है. तो ये पूरे आप वन ग्रुप को कलर कर दो ऊपर के ब्रिंजल का जो कलर होता है उससे. और रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप? 1/3 ऑफ 15 इज इक्वल टू, व्हाट इज द आंसर? हाउ मेनी यू हैव कलर्ड? 5. दैट इज योर आंसर. कलर जितने करेंगे वो आपका आंसर रहेगा. 3 5 are 15. अंडरस्टैंड? ओके, सेम वे ट्राई टू सॉल्व दिस सी. आपको खुद को ट्राई करना है ये सी को. आपको इसमें 3 ग्रुप को डिवाइड करना है. 3 ग्रुप में डिवाइड करके आपको कलर करके आंसर लिखना है. यस, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लिखती बताती हूँ. 1/3 ऑफ
आपको यहाँ पे लिखना है नंबर और यहाँ पे लिखना है नंबर जो आप फाइंड करने वाले हो। सी द क्वेश्चन 4th, शेयर 1/4 ऑफ द कलेक्शन एंड राइट द रिजल्ट। 1/4 आपको अभी तो आपको टोटल कलेक्शन को 4 से डिवाइड करना है। यस, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 4, 16 4 के टेबल में कब आता है? 4 4 जा 16। तो आपको इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। यस, एक ग्रुप में कितने एप्पल्स हैं? एक ग्रुप में आपके 1 2 3 4 एप्पल्स है। सो 1/4 कलेक्शन करना है आपको, तो आपको ये 4 एप्पल कलर करने। और रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप? 1/4 ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। यस, सेम वे ट्राई टू सॉल्व दिस विथ योर ओन। बी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। उसका क्या लिखेंगे आप? 1/4 ऑफ डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश। ये खुद सॉल्व करेंगे आप। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व। क्वेश्चन 5 सॉल्व, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। सी ए क्वेश्चन 1/2 1/2 ऑफ 22, 22 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 22 को 2 से डिवाइड करना है मतलब क्या करेंगे आप? 2 डैश डैश जा 22, 11 2 जा 22। यस, तो आपका यहाँ पे आता है आंसर 11। सेम वे 1/3 ऑफ 18, 18 को 3 से डिवाइड करो। 18 6 के टेबल में 3 के टेबल में कब आता है? 3 6 जा 18, तो आपका 6 हो गया आंसर। 3 6 जा 18। नाउ सी 1/4 ऑफ 36, 36 कम्स इन 4 टेबल एट विच नंबर? दैट इज 4 9 जा 36। टेबल लर्न होंगे तो आपको जल्दी जल्दी आंसर मिलता है। नाउ सी 1/5, 1/5 ऑफ 45, 45 5 के टेबल में कब आता है? 5 9 जा 45, तो 9 हो गया आपका आंसर। ओके, सेम वे आपको ये 4 नंबर सॉल्व करने ठीक से डिवाइड करके। हियर आवर चैप्टर इन्स, हियर क्वेश्चन बैग्स आर गिवन। क्वेश्चन बैग 1 आपको टेक्स्ट बुक में ही ठीक से करनी है। फ्रैक्शन आपको ठीक से फाइंड करके आंसर को टिक करना है। यस, क्वेश्चन बैग 2, शेड ईच फिगर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको पार्ट्स को काउंट करके उसका आपको फ्रैक्शन निकालना है। अगर ज़्यादा पार्ट्स है तो आप उसको डिवाइड करो डिनोमिनेटर से और आपको आंसर मिल जाता है। यस, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो यू आर गोइंग टू सॉल्व इन टेक्स्ट बुक। रीड द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली एंड फाइंड द आंसर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको 2 फ्रैक्शंस लिखने हैं, फ्रैक्शन शेडेड, फ्रैक्शन अनशेडेड। यस, हमने आप लास्ट पीरियड में देखा था शेडेड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, अनशेडेड फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं। शेडेड में कलर का नंबर ऊपर आता है, कलर किया हुआ। अनशेडेड में जो कलर नहीं किया वो नंबर न्यूमरेटर के प्लेस पे आता है। यस, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है। एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, 1/3 2/3 लाइक दिस। नाउ ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है आंसर। क्वेश्चन 4, इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द एडेंट्स आर द सेम। एडेंट्स मीन्स यहाँ पे जो नंबर है वो सेम आने वाले हैं, तब उसका आंसर ये आता है। फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पे सेम नंबर आपको ऐसा लिखना है जिसका आंसर 1 आएगा। यस, तो ये सब जो नंबर्स है वो फ्रैक्शन के नंबर्स है। यहाँ पे कितनी बार आप कौन सा फ्रैक्शन ऐड करोगे तो 1 आता है, वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे कितनी बार फ्रैक्शन कौन सा नंबर ऐड करके आपको 1 आता है, 3 बार, वो लिखना है। यस, so try to write the answers of this in textbook only. Read the chapter properly, you will get the answer of these questions also.